Good morning, everyone. Today we see the topic of machine learning algorithm. Machine learning algorithm in which linear regression algorithm also see and practical implementation also see. Linear regression algorithm is under of the supervised machine learning, and supervised machine learning, you know, the label data as well as input and as well as desired output also give the machine. Now question is that what is linear regression algorithm? Linear regression algorithm is the relation between dependent and independent variable. It is also a statistical method. Linear regression algorithm, we use the predictive analysis and to make a prediction, a continuous variable as well as real numeric value like sales, age, product. And suppose we have the diagram, y-axis is a dependent variable and x-axis is a independent variable, and like the sky blue is the data point, and in the line of regression, it is also called the hypothesis function, and this is the blue point is a data point. Now we have the two types of linear regression algorithm. First one is linear regression algorithm and second one is multiple linear regression algorithm. Simple linear regression algorithm, we have only one independent variable, and multiple linear regression we have the more than one independent variable to predict the output. Now we jump the practical implementation. Like we have the we download the Anaconda Jupyter notebook. This is the our entire screen is a Jupyter notebook navigator. Now simple, now we go to, this is a Jupyter notebook navigator. Now we will start the practical implementation of the linear regression algorithm. Okay, now go the new option and click on the folder. We have untitled folder, click it and rename. Now this is a linear regression algorithm, so I will be write linear regression, okay, rename it. Okay, this is my linear regression folder, click it on and take it the Python 3 file. Okay, this is the my page of Python Jupyter notebook. Also we write the name of untitled linear regression. This is the optional. Okay, we have the data set. This is a house prediction. अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक हाउस प्रिडिक्शन का बना रहे हैं. मैं आपको एक डेटा सेट ओपन करके बता देता हूँ इसके अंदर कि डेटा सेट है क्या. ये मेरे पास कुछ एरिया है और यहाँ पे मेरे पास कुछ प्राइस है. अब मैं चाह रहा हूँ कि एरिया और प्राइस का चाह रहा हूँ मैं कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ. मैं आपको एक इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ, एक आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हम क्या रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम से देखेंगे तो ये मेरे पास प्राइस है यहाँ पे और ये एरिया है. अब लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम बोलता ही यही है कि भैया एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट. एरिया जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्राइस है मेरा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके बीच की कुछ प्राइस निकालूं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में बात करूं तो मेरे पास जो प्राइस है यहाँ पे, अगर मैं 32 स्क्वायर फीट की अगर मैं प्राइस निकालना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 61 लाख कुछ 5,000 कुछ प्राइस आ रही है. पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 3200 और बिटवीन 36 मतलब 3600 की 3400 की बिटवीन द प्राइस निकालनी है एरिया की. कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 3300 की मुझे प्राइस चाहिए तो दिस इज़ अ प्रिडिक्टिव मॉडल. यही मॉडल मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ. तो मेरे पास कुछ डेटा सेट है ऑलरेडी, हमारे पास कुछ डेटा सेट होना चाहिए. ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इस पे काम करेगा हमारा. अगर हम ये स्लाइड देखें, यहाँ पे ये स्लाइड बोल रही है प्राइस इक्वल में m इंटू एरिया प्लस b, वेयर m इज द स्लोप और y इज द इंटरसेप्ट. ठीक है, इसको देखते हैं हम, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं. आते हैं आगे. मैं वापस जुपिटर नोटबुक पे जा रहा हूँ मेरा.
ठीक है। अब जो मेरा यहाँ पे मैं देखते हैं यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट है, मैंने ऑलरेडी डेटा सेट लेके रखा है। यहाँ पे मैंने आपको डेटा सेट ओपन करके भी बता दिया है। दिस इज माई डेटा सेट, दिस इज अवर डेटा सेट। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, डेटा सेट CSV फाइल का भी हो सकता है और एक्सेल फाइल का भी हो सकता है। एक्सेल तो आपको पता है इज अ एक्सटेंशन, CSV इज अ कॉमा सेपरेट वैल्यू। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया है और मैं जा रहा हूँ इसको एक अपना जो मेरा एक जहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन किया होगा वहाँ पे एक कोडा नाम का फोल्डर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये C में होगा। C के बाद आप यूज़र में जाएंगे, जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको पाथ बता देगा कि कहाँ पे रखा हुआ है। फिर मैं यहाँ गया HP में और यहाँ पे देखेंगे जो मैंने फोल्डर बनाया है लीनियर रिग्रेशन का, वो आपको यहाँ पे दिख गया। मैंने इसके अंदर गया और मैंने इस डेटा सेट को यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखेंगे ये मेरा पेस्ट हो गया है हाउस का। ओके, अगेन मैं अपने जुपिटर नेविगेटर पे जा रहा हूँ। मैंने अपना जुपिटर नेविगेटर ओपन किया है यहाँ पे, ये रहा। पर आप इसके पहले क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा house.csv और लीनियर रिग्रेशन आपकी जो पाइथन की फाइल है। ओके, नाउ हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मुझे डेटा सेट को रीड करना है तो वी यूज़ द लाइब्रेरी ऑफ द पांडास। पांडास इज यूज फॉर द रीड ऑफ द डेटा सेट। ओके, तो हम इसको देखते हैं। पहले हम लिखेंगे import pandas as numpy, sorry as pd, not a numpy. Okay, again the second library to use the calculate of the array, import numpy used for the calculation, numpy as np. ओके, आप चाहे तो इसको दो लाइब्रेरी को यहीं रन करके देख लीजिए, मतलब आपकी लाइब्रेरी में कोई एरर नहीं है, आपके कोड में कोई एरर नहीं है। अगेन import matplotlib यूज फॉर दी टू यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, matplotlib.pyp plot as plt। अगेन अगर हम मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहे हैं तो हमको sklearn पे जाना पड़ेगा। sklearn इज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी जिसपे सारे पैरामीटर दे रखे हैं मशीन लर्निंग के। पर अभी अब मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहीं पे ही। import sklearn फ्रॉम, हम लीनियर मॉडल बना रहे हैं। आप टैब दबाएंगे, देखेंगे आपको लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, इसको आप रन करके देखेंगे यहाँ कहीं ना कहीं एरर आ रही है हमारी। लीनियर मॉडल, मैं अभी इसके ऊपर हैश लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि बाद में हम इसको रन करेंगे। बाकी हम कोड लिखते हैं जब तक डेटा सेट रीड करते हैं, ठीक है। अगेन अब हम देखते हैं यहाँ पे, आप भी इसमें हैश लगा सकते हैं, अदरवाइज अभी रन नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि बिकॉज कुछ शायद टेक्निकल इशू की वजह से आ रहा है। मैं आगे उसको हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डेटा सेट को रीड कर रहा हूँ, तो मैंने डेटा सेट को df ले लिया है। df इक्वल में डेटा सेट इज माई वेरिएबल, df इक्वल में pd.read, मैंने pd.read किया _csv, और यहाँ पे मैंने डेटा सेट का नाम देखा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे डेटा सेट का नाम है house.csv। तो मैं इसी के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ house.csv। जैसे आप इसको करेंगे रन, देखेंगे ये आपका रन हो चुका है, मतलब आपकी कोई एरर नहीं आई है। चाहे तो आप df.head कर लें। यहाँ पे head इज़ अ फंक्शन, जैसे आप करेंगे आपका डेटा सेट रीड हो जाएगा। पर आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपको जो हेड होता है वो स्टार्टिंग की 5 वैल्यू बताता है, पर आप चाहते हैं कि आपको 3 या 4 वैल्यू देखनी, तो आप इसके अंदर आप जो भी आपकी न्यूमेरिक की है वो प्रेस कर दें और देखिए यहाँ पे आपको 3 वैल्यू मिल रही है। नाउ अगेन अगर हम आते हैं आगे, डेटा सेट हमारा रीड हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डेटा सेट बता चुका हूँ। उसके अंदर मेरा एक एरिया है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट डेटा सेट लिया हुआ है, उसमें एरिया है और प्राइस है, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो लीनियर रिग्रेशन हमारा बोलता है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन इस टाइप का हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गया, वापस मैं अपने नेविगेटर पे गया
वो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं स्ट्रेट लाइन वाला बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइब्रेरी यूज़ करूँगा परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन। जैसे मैंने इसको लिखा इनलाइन और मैंने इसको रन किया, मतलब ये मेरी लाइब्रेरी सक्सेसफुल रन हो गई है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे मैं आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको मेरे जितने भी पॉइंट है जो मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब मेरी एक वाई एक्सिस वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं चाह रहा हूँ जो मेरे प्राइस और एरिया है वो मेरे 2D पे स्कैटर्ड हो जाए, पॉइंट दिख जाए। तो ओके, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं PLT मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैटप्लॉट यूज़ कर PLT डॉट मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसके लिए हमने ऑलरेडी उसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है यूज़ फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और परसेंटेज मैटप्लॉट डॉट इनलाइन हमने यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं भी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। मैंने लिखा PLT डॉट स्कैटर। अब मैं इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पहला तो मेरा DF डॉट एक मेरा प्राइस एक एरिया है, एरिया मैंने कॉमा लगाया यहाँ पे। अगेन DF डॉट मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा प्राइस आ जाए, ये मेरा प्राइस आ गया। ओके, चलो इसको हम देखते हैं। इसका देखें ये सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है मेरा सक्सेसफुल। अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आने के बाद इसको हम थोड़ा सा और जो मेरा देखेंगे यहाँ पे ये मेरी प्राइस है और ये मेरा एरिया है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मेरा कलर हो CLOR कलर इक्वल में मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। आप जो भी आपको कलर हो वो ले सकते हैं। और कॉमा लगा के मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक मार्कर ले लूँ मैं। मार्कर मतलब जो भी मुझे सिंबल देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अपना स्टार या फिर प्लस ले लिया। मैंने प्लस लिया और यहाँ पे मैंने इसको देखा तो देखेंगे आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। दिस इज द ये जो मेरे रेड वाले प्लस दिख रहे हैं दिस इज माय डेटा पॉइंट, ये मेरे क्या है एक डेटा पॉइंट है। ओके, अब हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, जो मेरी वाई एक्सिस है वो मेरी प्राइस की है और जो मेरी एक्स एक्सिस है वो मेरी एरिया की। जैसे अब मैं आपको एक PPT में दिखा देता हूँ किस टाइप से ये देखेंगे आप, जो मैंने एक यहाँ पे बताया है। यहाँ पे ये है कि ये मेरी प्राइस है और ये मेरा एरिया है। इसी को इस तरीके से हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे वापस जाएंगे, अगेन नेविगेटर पे गया, मैं इसके ऊपर गया इनलाइन के ऊपर, मैंने यहाँ पे ही लिख दिया PLT डॉट एक्स लेबल पे आप किसको देना चाहते हैं, एक्स लेवल पे आप देना चाहते हैं एरिया को। ओके, अगेन आप PLT डॉट वाई पे आप किसको देना चाहते हैं, प्राइस को। लेबल वहाँ पे आप देना चाहते हैं किसको, प्राइस को। ओके, ठीक है। अगेन मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखेंगे जो आपका वाई एक्सिस है उस पर प्राइस आ गया है और जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा मॉडल ऑलरेडी हो गया है। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट नहीं हो रही थी उसको हम इंपोर्ट करते हैं। मैं वापस से हटा रहा हूँ इसको, इंपोर्ट sklearn फ्रॉम sklearn इंपोर्ट। देखिए मॉडल ऑटोमेटिक लिखा आ गया। जैसे ही मैंने टैब दबाया है, मैंने यहाँ पे इसको रन किया है, मतलब ये मेरा सक्सेसफुल रन हो गया है। जैसे आप फ्रॉम sklearn और इंपोर्ट LIN लिखेंगे और टैब दबाएंगे, वैसे ही आपका विद इन अ सेकेंड के अंदर आपका जो भी लीनियर मॉडल है वो कॉल हो जाएगा। मैं लीनियर मॉडल पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आते हैं, मॉडल को पहले ट्रेन करेंगे, देन फिट करेंगे, उसके बाद हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके लिए पहले हम आते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए आते हैं। मैंने एक मॉडल नाम का वेरिएबल ले लिया, MODL मॉडल इक्वल में मॉडल को पहले मॉडल का हम एक क्लास बना लेते हैं लीनियर। जैसे आप टैब दबाएंगे देखेंगे लीनियर मॉडल ऑलरेडी आ गया है। देखेंगे लीनियर मॉडल डॉट
कैपिटल में R लिखेंगे, अगेन टैब दबाएंगे, आपको लीनियर रिग्रेशन कहीं दिखेगा, डॉट, थोड़ा सा टाइम लगता है जुपिटर नोटबुक में, लीनियर रिग्रेशन, इसकी मैंने क्लास बना ली है यहीं पे ही लीनियर रिग्रेशन की। देखो ये सक्सेसफुल रन हो गया है। चाहे अगर आप टैब दबाएंगे, 1 मिनट, वापस आप जाएंगे, एक काम करेंगे, मॉडल के बाद डॉट लगा के कैपिटल R लिखेंगे और फिर टैब दबाएंगे। देखो यहाँ लीनियर रिग्रेशन आ गया है और यहाँ पे आप इसका एक फंक्शन बना लो, ये आपका बन गया है। ठीक है, ये सक्सेसफुल कॉल हो गया है। मेरे यहाँ पे क्लास तो बन गई है। अब मैं मॉडल को पहले क्या कर देता हूँ, ट्रेन कर देता हूँ। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मॉडल को, मॉडल, चाहो तो आप अगली लाइन में लिख लो या फिर उसी लाइन में लिख सकते हैं, मॉडल डॉट फिट। ओके, मॉडल को फिट बनाएंगे। ठीक है, अब मॉडल को फिट बनाएंगे तो मेरे पास 2D की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 डायमेंशनल है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं इसको 2D में कन्वर्ट करता हूँ। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने। ओके, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जैसे ही आपका, जब आपने जो एक ब्रैकेट ऑन किया है फर्स्ट वाला नॉर्मल ब्रैकेट, उसके आप DF लिखेंगे। DF के बाद आप जा रहे हैं सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे एरिया, आपको एरिया देना है उसको। और फिर आप लास्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट के आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं DF डॉट प्राइस। ओके, मैंने इसको बाहर लिख दिया है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ। ओके, ये मेरा सक्सेसफुल ट्रेन हो गया है मॉडल। आगे मैं जाता हूँ, मॉडल को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखूंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करूंगा। ओके, मॉडल को हम प्रिडिक्ट करना, अगेन मॉडल को भी आप प्रिडिक्ट करने के लिए 2 डायमेंशनल का यूज़ करेंगे। अगेन मैंने 2 डायमेंशनल यूज़ किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो डेटा सेट है, मैं यहाँ पे पूरा डेटा सेट देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा सेट, मेरे पास आई थिंक 5 to 6 वैल्यू है। मैं 6 लगा के इसको यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये रहा मेरा डेटा सेट। डेटा सेट में मेरे 2600, 3000, 3200 इस टाइप से कुछ वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ प्रिडिक्शन करना कुछ प्राइस की। मैं चाह रहा हूँ 3100 की प्राइस को प्रिडिक्ट करूँ कि उसकी प्राइस क्या आती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3100 लिखा मैंने और यहाँ पे किया। तो देखो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन आ गया है। मतलब अगर हम ऊपर जाके देखें, ऊपर अगर हम देखें तो 3000 की जो प्राइस है वो 56 लाख समथिंग कुछ है, 50,000। और अगर 31 की देखें हम तो 60 आ रही है। मतलब ऑलमोस्ट उसका प्रिडिक्शन हमारा कहाँ जा रहा है, सही आ रहा है। मेरे डेटा सेट में कुछ ज़्यादा इंटरवल है, इस वजह से थोड़ा सा प्राइस का जो आ रहा है वो वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि डेटा सेट मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। आगे हम जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेटा सेट है, अभी तो सिंपल से मेरी एक ही प्राइस है, पर मेरे डेटा सेट में जितनी वैल्यू है, ठीक है, मेरे डेटा सेट में क्या क्या है जरा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा मेरा डेटा सेट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस डेटा सेट को, मैंने एक और डेटा सेट है प्रिडिक्ट प्राइस, इसमें सिर्फ मैंने एरिया लिखे हुए हैं। जो मेरे पास एरिया गिवन है वही मैंने एरिया लिखे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैं प्रिडिक्शन करूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिडिक्टेड प्राइस मेरे को CSV फाइल मिल जाए। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं, करते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट मैंने हाउस वाले डेटा सेट में से प्राइस को हटा दिया है और मैंने एक नया डेटा सेट बना लिया जिसको प्रिडिक्ट प्राइस के नाम से किया। अगेन मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और जो आपका एक कोडा नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर आप जाएंगे, सी में जाएंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको वो पाथ बता देगा कि वो कहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है। देखेंगे यहाँ पे ये एनाकोंडा नाम से आया हुआ है और हम बना रहे लीनियर रिग्रेशन। मैंने इसके अंदर इस CSV फाइल को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट हो गया है। अगेन आपको दिखने लगेगी ये CSV फाइल, यहाँ पे देखेंगे ये रही मेरी CSV फाइल। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इसमें एरिया लिखें और प्रेडिक्टेड प्राइस जितनी भी है वो CSV में आ जाए। ओके, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, इसको भी मुझे रीड करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसको DF1 नाम दे दिया। अगेन हमको पता है कि एक वेरिएबल बनाया हमने और हमको PD के हेल्प से हम इसको रीड करेंगे। PD इज़ माई पांडास लाइब्रेरी, PD.read _CSV। और यहाँ पे मैंने जो भी इसका नाम है, इसका नाम है मेरा
प्रिडिक्ट प्राइस, तो मैं इसमें लिखूंगा प्रिडिक्ट अंडर स्कोर प्राइस डॉट CSV। मैंने ये लिख लिया है डॉट CSV। आगे आप देखेंगे इसको मैंने रन किया है, देखेंगे सक्सेसफुल रन हो गया है रन हो गया है। आप df1 डॉट हेड कर लो। हेड इज फंक्शन जिसमें हमको टॉप वैल्यू देखती हैं, देखेंगे इसमें सिर्फ मेरी क्या आ रही है, एरिया आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी एक फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक प्राइस नाम का हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। प्राइस नाम का वेरिएबल बनाने के बाद जो हमने मॉडल यहाँ पे लिया था, ये मॉडल से हम क्या करते हैं, इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो मॉडल लिखेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और आप इसके अंदर जो आपका DF है, DF1, उसको यहाँ पे लिख दीजिए आप DF1 और इसको सक्सेसफुल रन कर दीजिए। मतलब मेरा सक्सेसफुल रन हो चुका है DF.1। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक प्राइस का क्या बना लूँ, कॉलम बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा DF1 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख लिया प्राइस और इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पे प्राइस। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये भी मेरा सक्सेसफुल रन हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, यहाँ पे DF1 डॉट 2 और यहाँ पे CSV करेंगे आप, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रिडिक्शन अंडर स्कोर CSV, प्रिडिक्शन अंडर स्कोर डॉट CSV। मैंने इसको सिंपल लिख दिया, मेरे को इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे इसको रन किया, देखेंगे ये सक्सेसफुल क्या हो गया, रन हो गया। आप जाइए अब यहाँ पे, आप आपके डेटा सेट में जाइए, जो आपने डेटा सेट जहाँ पे कॉपी किया हुआ है, यही वाला सेम। अगेन जा रहा हूँ मैं, ये रहा मेरा लीनियर रिग्रेशन का, वो मैंने यहाँ पे इसको एक और प्रिडिक्शन फाइल आई होगी यहाँ पे। मैं अगेन कोना नाम के फोल्डर में जा रहा हूँ, मेरा लीनियर रिग्रेशन का ऑलरेडी बना हुआ है। ये मेरी प्रिडिक्शन डॉट CSV फाइल आ गई है यहाँ पे। इसको ओपन विथ आप कर लीजिए, जिसमें आपको करना है, देखिए यहाँ पे आपकी, मैंने नोटपैड में ओपन किया है, यहाँ पे आपकी एरिया है और यहाँ पे उसके जो भी प्रिडिक्टेड प्राइस है वो आ गई है सारे के। तो हम चाह रहे थे कि जितने भी प्रिडिक्टेड प्राइस है वो क्या हो जाए, हमारी एक CSV फाइल में आ जाए। ओके, हम थोड़ा सा और जाते हैं, लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाते हैं। हमने देखा था एक, यहाँ पे मैंने आपको एक PPT में बताया था कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो इस पे काम करेगा, y इक्वल में mx प्लस c। मेरा y ऑलरेडी पता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो m है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं सॉरी, m मेरा स्लोप है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा इंटरसेप्ट है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आंसर को कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ गए हम, यहाँ देखो जो मेरी प्रिडिक्टेड प्राइस है वो कुछ समथिंग यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक है, यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले मेरे को स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मॉडल, ऑलरेडी मॉडल का नाम का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, मॉडल डॉट कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट निकालते हैं अंडर स्कोर, देखेंगे आपका कोफिशिएंट कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट आ गया है। अगेन मॉडल आप करेंगे, कोफिशिएंट के साथ मुझे इंटरसेप्ट चाहिए, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, आप इंटरसेप्ट करेंगे, इंटरसेप्ट अंडर स्कोर, तो आपका इंटरसेप्ट भी कहीं ना कहीं आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक हैश लगा के वैल्यू लिख रहा हूँ, y इक्वल में mx प्लस c। ओके, y इक्वल में मैंने mx प्लस c लिख दिया है, y इक्वल में मैंने mx प्लस c लिख दिया है। अब देखेंगे हम इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। जो हमारी ओरिजिनल प्राइस आई है, क्या यही प्राइस आ रही है, इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ, इस अरे के अंदर यही प्राइस आ रही है क्या,
ओके मैं करता हूँ, मैंने m भी निकाल लिया वेयर m इज माई कोफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट भी निकाल लिया वेयर c इज माई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आई है। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है, तो आपने प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पे 3100 को समथिंग यूज़ किया हुआ है। ओके उसी को ही लिखते हैं हम। अब मैंने सबसे पहले m की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर ली है वेयर m इज माई कोफिशिएंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मैंने m लिया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल v किया। अब मैंने क्या किया, उसके बाद क्या बोल रहा है वो x है, तो इंटू x मेरा कितना है आपको पता ही है 3100 प्लस आप देखेंगे इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट भी हमने निकाला हुआ है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर से हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू भी निकाली हुई है। देखते हैं ये है मेरे पास कुछ समथिंग यहाँ पे आ रहा है, इंटरसेप्ट ये वैल्यू आ रही है, इसको भी मैंने कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V किया है। अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखेंगे जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है दे बोथ आर सेम, वो दोनों केस ये सेम है। तो ये एक था हमारा एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है जिसमें हमने सिंगल वैल्यू लिया, मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और उसकी हेल्प से हमने एक सिंपल सा प्रिडिक्शन मॉडल बना हुआ है। दिस इज़ द आवर मॉडल। इसमें आप और कुछ भी कर सकते हैं, आगे भी इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख सकते हैं, पर अभी बेसिकली इतना ही है सिंपल। अगर आपको एक सिंपल सा मॉडल बना के चेक करना है, आपको इसको एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, तो आप इससे कर सकते हैं। थैंक यू।